Assalamu alaikum class. Welcome to Software Requirement Engineering online classes. This is week number 3. Last week we discussed in chapter 5 transformational processes. This week we will discuss writing requirements using templates. We will try to understand what effect does template has while writing requirement in natural language and what steps that need to be followed to elicit requirements easily and clearly. I am your teacher Hassan Shah. Let's start a lecture with brief introduction to templates and its steps. Requirement construction using templates. Let's talk about the quality by means of requirement templates and glossaries. To reduce language effect, we use templates. Its support and software engineer in achieving high quality and unambiguous statements in less time and cost. तो जो हम लोग templates में लिखेंगे चीज़ों को तो एक चीज़ क्लियर है कि इसकी हाई क्वालिटी हो जाएगी और हमारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी और टाइम भी हमारा बचेगा. To achieve language clearness, it is wise to use templates and glossaries. Glossaries के बारे में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था. इस चैप्टर में हम सिर्फ templates पर बात करेंगे. Let's check out step-by-step description of correct application of requirement templates. So, किस तरह उनको हमने डिस्क्राइब करना है वो स्टेप बाय स्टेप आपको डिफाइन कर देंगे. इन नेक्स्ट स्लाइड से हम स्टार्ट करेंगे वो चीज़ें. टोटल 5 स्टेप्स हैं टू परफॉर्म एज पर रिक्वायरमेंट्स. रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो दे आर यूज्ड टेम्पलेट्स हम कब इस्तेमाल करेंगे. दे आर यूज्ड व्हेन प्रोजेक्ट मेंबर्स शो इंटरेस्ट इन फॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसेसेस. रिक्वायरमेंट टेम्पलेट्स आर नॉट कंपल्सरी. लाजमी नहीं बनाना, but it is used as a tool for learning and training of writing requirements. Let's check out the steps. Step number 1 is to determine the legal obligation. Legal obligation means to understand the requirements and how important they are. So step number 2, the requirement core. We'll discuss the core of the requirements. Functions की बात करेंगे यहाँ पे, process की बात करेंगे. Step number 3 is categorize the activity of a system. हम देखेंगे कि एक रिक्वायरमेंट जो गदर की जाती है उसकी 3 टाइप्स बन सकती हैं. एक तो ऑटोनमस सिस्टम एक्टिविटी हो सकती है, यूज़र इंटरेक्शन चाहिए होगी उसमें, और तीसरा मे बी वो इंटरफेस रिक्वायरमेंट हो. Step number 4 we will insert objects, and step number 5 will determine logical and temporal conditions. Step 1, determine the legal obligation. जिस तरह पहले बताया आप लोगों को, we need to understand कि जो आपको स्टेटमेंट दी गई है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और उसको आपने कहाँ पे रखना है. First this to determine the legal obligation requirements. Identify and distinguish whether the requirement is legal obligatory, लाजमी करनी है, urgent recommended, future में करना चाहते हैं, और desirable, that the customer actually desire कि जी ऐसा होना चाहिए. You should model such requirements using shall, should, will and may. Remember these things, they are very important. ये जो 4 आपको नज़र आ रही हैं क्योंकि ये आगे templates में इस्तेमाल होंगी, ये सबसे important है. Should, shall, should, will and may. Alternately, legal obligation requirements can be documented by specific requirements attributes. Attributes के बारे में हम लोग आगे chapters में पढ़ेंगे. We'll talk about the attributes inshallah in chapter number 7. Let's come to step number 2. जब स्टेप नंबर 1 आपने परफॉर्म कर लिया, यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि जी लीगल ऑब्लिगेशंस आपने डिफाइन कर ली कि इसमें हम शेल इस्तेमाल करेंगे, शुड इस्तेमाल करेंगे या विल इस्तेमाल करेंगे. द स्टेप नंबर 2, रिक्वायरमेंट कोर. डिटर्मिन द रिक्वायरमेंट प्रोसेस. आपने प्रोसेस को डिटर्मिन करना है. कोर रिक्वायरमेंट्स इज़ द फंक्शनलिटी लाइक सेव, प्रिंट, कैलकुलेट एंड एक्सेट्रा. जी जो फंक्शनलिटीज़ हैं, दीज आर द कोर. दिस फंक्शनलिटी रेफर टू एज प्रोसेस. ये एक प्रोसेस को डिफाइन कर रहा होगा यहाँ पे. Process is described using verbs. We already discussed these verbs. Step number 2 should consider the process that depicts the system behavior. तो यहाँ पे हमारा system 2 जो है वो system का behavior on the basis of the process determine करेगा. Alright? Since process is a word, it should be clearly defined and used during requirement elicitation. तो हमने इसकी बात की थी कि अगर वहाँ पे आप लोग process को explain करें अच्छी तरह या इसको glosses में उठा कर डालें ताकि बेहतर explain किया जा सके. Step number 3, characterize the activity of a system. For functional requirements, तो लाजमी किसको characterize करना है हम लोगों ने, वो functional requirements को. A system should perform any one of the 3 type of activities.
फर्स्ट वन इज ऑटोनमस, मीन्स के सिस्टम शुड डू इट ऑटोमेटिकली, सिस्टम ऑटोमेटिकली वो करेगा काम। सेकंड चीज़ जिसमें हम डिस्कस करेंगे वो है यूज़र इंटरेक्शन, सिस्टम फंक्शनलिटी इज पास टू यूज़र, कि यूज़र को दे दी जाती है, यूज़र उसके अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म करता है। इंटरफेस रिक्वायरमेंट, सिस्टम रिमेन पैसिव एंड वेट आइदर रिस्पॉन्ड फ्रॉम एक्सटर्नल एंटिटी, कोई एक्सटर्नल एंटिटी होगी लाइक कोई सिस्टम होगा, कहीं से रिस्पॉन्स उसको मिलेगा, फिर वो उसके आगे चलेगा, और इवेंट टू बी एग्जीक्यूटेड, या कोई इवेंट एग्जीक्यूट होगा तो वो काम करेगा आगे। So step number 3, document any kind of activity a system can perform using template, any one of the three. तो इसमें से कोई एक चीज़ आपने चूज़ करनी होगी कि सिस्टम जो है वो क्या काम परफॉर्म करेगा। Let's understand templates and their application. Defining the template. After performing the step 1, 2, 3, जब हम 3 steps कर चुके होंगे, the structure of the requirement has been developed. जिस तरह की आपको फिगर नीचे नज़र आ रही है, इसमें हमारे पास एक सिस्टम है, वो शेल शुड विल और मे कुछ करेगा जो भी डिज़ायर्ड है, अगर मे है तो डिज़ायर्ड है। प्रोसेस वर्ब लगाया जाएगा, यहाँ पे कुछ परफॉर्म करेगा, कुछ कैलकुलेशंस करेगा, कुछ प्रिंट करेगा। प्रोवाइड होम विद द एबिलिटी ऑफ प्रोसेस टू प्रोसेस वर्ब, ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया। बी एबल टू प्रोसेस वर्ब, कुछ करेगा, विल बी एबल टू डू समथिंग, मतलब इंग्लिश में आप इसको लिख सकते हैं किस तरह भी, तो इट हैज़ टू बी एनी वन ऑफ देम। शेल के बाद हम कहेंगे जी के प्रोसेस वर्ब भी लगा सकता है, शेल परफॉर्म कैलकुलेशंस। द वर्ड दैट आर रिटन इन एंगल ब्रैकेट्स, जो एंगल ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, ये वाले और ये वाले सिस्टम नेम वगैरह, मस्ट बी रिप्लेस अकॉर्डिंगली, इसको आप रिप्लेस कर दें अपने सिस्टम के साथ। इम्प्लीमेंटिंग टेम्पलेट ऑन सिस्टम एक्टिविटीज़। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर फर्स्ट टाइप ऑफ एक्टिविटी, हमने बात की ऑटोनमस सिस्टम अगर आपके पास है, सिस्टम एक्टिविटी कोई आ रही है। द रिक्वायरमेंट्स एज डिपिक्ट सिस्टम एक्टिविटीज़ परफॉर्म ऑटोनमसली, मतलब वो खुद ब खुद परफॉर्म करेगा। Here user does not interact with the activity. Template define is as following: the system shall, should, will, may, some process verb, calculate. This is autonomous thing है। Process verb को that we discussed in step 2, like print, etc., calculate वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, तो autonomous है। Let's talk about user interaction, the type 2 of template 3. Use if the functionality is passed on to a user to perform something that we will pass on to the user, ताकि वो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म कर सके। Here user interact with the activity, तो जो काम दिया जाएगा उसके अगेंस्ट यूज़र उसको ओके या कैंसिल करेगा, या उसके अगेंस्ट कुछ कैलकुलेट करेगा, कोई वैल्यू एंटर करेगा। Template define is as following: the system shall, should, will, may provide whom, रजिस्टर्ड यूज़र होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगी, कोई गेस्ट होगा, विद एबिलिटी टू प्रोसेस वर्ब, सम प्रोसेस वर्ब डाला जाएगा कि विल बी एबिलिटी टू कैलकुलेट या ऑर्डर या चेक आउट समथिंग। द यूज़र दैट इंटरेक्ट्स विद द सिस्टम इज इंटीग्रेटेड ऑन टू द रिक्वायरमेंट्स थ्रू होम। तो हम लोग यहाँ पे जो टाइप 2 वाला है इसमें हम लोग देखते हैं जी कि किसको दिया जा रहा है ये एक्शन परफॉर्म करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप 3 की बात करते हैं, इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। यूज़ इफ दिस फंक्शनलिटी इज पास्ड ऑन टू अ नेबरिंग सिस्टम, कोई और सिस्टम है जो कि किसी एक्सटर्नल एंटिटी है और उसके रिस्पॉन्स का वेट करेंगे। हेयर सिस्टम मस्ट रिएक्ट बाय एग्जीक्यूटिंग स्पेसिफिक बिहेवियर अगेंस्ट एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी उसके अगेंस्ट वो जो भी एग्जीक्यूशन होगी जो कि बेसिकली किसी एक्सटर्नल एंटिटी को वो उससे वहाँ से एक्सटर्नल एंटिटी से वो कोई परमिशन लेगा तो वो यहाँ पे बिहेवियर देखा जाएगा, उसके बाद वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। टेम्पलेट्स डिफाइंड इज एज फॉलोइंग: द सिस्टम शैल, शुड, विल बी एबल टू प्रोसेस वर्ब, तो ये प्रोसेस वर्ब यहाँ पे आपको लगाना होगा ताकि आप एक टेम्पलेट कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट इज ऑप्शनल चीज़ें हमारे पास, ये 3 जो बेसिक्स थे हमारे पास। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग इसमें कुछ एडिशनल कंडीशन भी डाल सकते हैं, एडिशनल ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हैं। सम प्रोसेस वर्ब्स रिक्वायर एडिशनल ऑब्जेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड कंप्लीट। इन स्टेप 4 दोज मिसिंग ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड एंड एडेड टू द रिक्वायरमेंट्स। तो स्टेप 4 में हम लोग जो हैं जो ऑब्जेक्ट्स हमारे मिस होते हैं वो हम उनको वहाँ पे इंसर्ट करते हैं। कैसा बन जाएगा टेम्पलेट? लेट्स चेक आउट द टेम्पलेट। Example of added objects. A good example of the requirement template for the process verb print is amended by the information of what is being printed.
आपको याद होगा हमने कहा था प्रोसेस के आगे हम लोग कुछ एडिशनल चीज़ें लगा सकते हैं, व्हाट वे है, तो यहाँ पे ये वो ऑब्जेक्ट जब इंसर्ट किया जा रहा है तो हम यहाँ पे ये दो चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ देखें आपके पास किस पे, ऑब्जेक्ट पे करेगा, और कोई एडिशनल डिटेल अगर हैं इफ़ दे आर देयर तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हो, सिर्फ ऑब्जेक्ट डाला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है जी हमारे पास स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हम लोग एक और चीज़ एंटर करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशंस। तो ऐड कंडीशंस टू टेम्पलेट। कंडीशंस आर बेस्ड ऑन आइदर लॉजिकल और टेम्पोरल कंडीशंस। तो लॉजिकल कोई चीज़ लॉजिकली है, कुछ दुनियावी चीज़ें, टेम्पोरल मीन्स दुनियावी चीज़ें, समथिंग टू डू विद द वर्ल्ड। वी यूज़ इट फॉर अ लॉजिकल कंडीशन, वी यूज़ इफ़। ये देखें, अगर इफ़ यूज़ होगा तो लॉजिकल होगा, और समथिंग लाइक कि जी एज सून एज ये चीज़ हो तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ आ जाए, तो इस कॉल्ड टेम्पोरल कंडीशन। हम लोग अवॉइड करेंगे वैन को, वी विल अवॉइड, डेफिनेटली विल अवॉइड वैन, एज इट इज़ नॉट क्लियर वेदर इट्स टेम्पोरल लॉजिकल, वी डोंट अंडरस्टैंड ये लॉजिकल होता है टेम्पोरल होता है। तो बेसिकली वी आर मोर कंसर्न ऑन इफ़ एंड एज सून एज, इन दो चीज़ों पे हम लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कंडीशन आर टिपिकली एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट टेम्पलेट as a subordinate clause. So what we will do is like we will add requirement conditions at the start of the template. So conditions always go at the start. So let's check out the finalized template. We can see here that we have conditions, which is this part. Says under what conditions the system shall do something on an object and what happens to that object. All right, so this is a complete template for writing the requirements. I hope it's helpful, this information is helpful for you guys to write requirements. Thank you very much for watching a lecture. See you next week, inshallah. Take care. Allah Hafiz.